یقیناً ہم سنی آج بھی پکارتے ہیں سرکار کی آمد، سردار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، ستار کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، مصطفیٰ کی آمد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر جتنی خوشیاں منائی جائیں وہ کم ہے۔ آؤ حضرت بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک میں یہ نور پاک کب آیا، کیسے آیا؟ حضرت عبداللہ نے نکاح کیا، حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ ان کے گھر تشریف لائی، اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کا چمکتا ہوا یہ پیشانی پر نور منتقل ہوا بطن آمنہ میں۔ وہ دن بھی محفوظ کیا گیا، وہ جمعہ کی رات تھی اور رجب کا مہینہ تھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، اور جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ کا میرے پیٹ میں منتقل ہوا، اب چلتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں کے قدموں میں۔ سب سے عظیم ماں کے قدموں میں آمنہ، تم نے جو مقام پایا پوری کائنات کی کسی ماں نے نہیں پایا، کسی ماں نے نہیں پایا۔ ہم سب کی ماؤں کا بلکہ پوری کائنات کی مائیں آمنہ بی بی کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ اس آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں آنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ کی ماں سے، آپ ہی بتائیں، سب سے بہتر بتا سکتی ہیں، ان کی کیوں سنیں؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے بطن میں آیا، میں نے سنا تھا کہ حمل کے آتے ہی چکر آتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، پیٹ درد ہوتا ہے، پاؤں بوجھل ہوتے ہیں، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں یہ نور منتقل ہوا، نہ مجھے چکر آیا، نہ میرا سر درد کیا، نہ پاؤں پھولے، نہ الٹیاں آئی، بلکہ ہر دن میرے اندر ایک نور کی شمع نظر آتی تھی، ہر دن ایک سرور نظر آتا تھا، خوشیوں کا عالم تھا، پیٹ میں ہمیشہ ٹھنڈک رہتی۔ آخر چکر اور الٹی کیسے آئے؟ پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول آ رہا، جو رسول غریبوں کا ماوا وہ ملجا، یتیموں کا سہارا، وہ بطن آمنہ میں ہے، بھلا اپنی ماں کو تکلیف کیسے دیتا۔ رسول پاک کے بطن پاک میں آنے کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہیں کبھی میرے پیر بوجھل نہیں ہوئے، کبھی پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوا، نہ چکر آئے نہ الٹیاں ہوئی، ہمیشہ فرحاں و شاداں رہی، یہاں تک کہ پہلا مہینہ گزرا۔ حضرت آمنہ سے ہی یہ روایتیں ہیں، پہلا مہینہ گزرا اور دوسرا مہینہ آنے کو تھا حمل کے، اسی وقت میں نے دیکھا رات کے وقت سوئی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے پیٹ میں ایک سعادت والا بیٹا رکھا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اتنا کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب مہینہ شوال کا آیا، ہر مہینے کی حضرت بی بی آمنہ نے بات بیان کی، شعبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رمضان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، شوال میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ہر مہینے میں ایک ایک نبی آتے، حضرت بی بی آمنہ کو بشارت دے کر جاتے، یہاں تک کہ یہ مہینے گزرتے ہوئے آئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی ساعتیں قریب آئیں، سفر کا مہینہ آیا۔ ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلے کیا ہے؟ سفر کا مہینہ۔ سفر کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے حمل کو 8 مہینے مکمل ہو کر 9واں شروع ہو چکا تھا۔ جب سفر کا مہینہ آیا تو میں رات کو سوئی تھی تو جبرائیل مجھے نظر آئے، جبرائیل نظر آئے اور سارے ملائکہ کو یہ اعلان کر رہے تھے اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تو میلاد کے لیے عشاء کے بعد تیاریاں، جبرائیل ملائکہ کو مہینے بھر پہلے تیاریاں کرا۔ سفر کے مہینے میں کہا گیا کہ سب کھڑے ہو جائیں صف بستہ، یہ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اور اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا۔ جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ آئی، اس رات سے لے کر 12ویں شب تک میں اپنے گھر پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنتی تھی، اور آنکھیں کھول کر دیکھتی، نہ وہ گھوڑے ہوتے نہ جانور ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی یہ 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں آئی تو میں نے حوران جنت کو بھی ترانے گاتے ہوئے سنا، حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ، یہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ حوروں کی آوازیں آنے لگی، ملائکہ کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہ ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب 12ویں رات آئی، جس رات کو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں،
जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई हैं। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामलात तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाईन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी। हुजूर तशरीफ ला चुके थे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस साते दिन, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गई, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा,
लगा। हजरत बीबी आमना इंतजार करती रही। अचानक वो तीनों फरिश्ते आए और मुस्तफा करीम को लिबास में मलबूस लाकर बीबी आमना के पास रखा। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा कि ये तुम कहाँ ले गए थे, अचानक गायब कैसे हो गए थे? फरिश्तों ने कहा, हमें अल्लाह का हुक्म था, इस महबूबे खुदा को हम उठाए और आलम मलकूत में ले गए। फरिश्तों के यहाँ ले गए, जिन्नात के यहाँ ले गए, तमाम आलमों में सैर कराया और सबको ये बताया, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। वो मलाइका ने मेरे मुस्तफ़ा की जियारत सबको कराई, सारे मलाइका को, सारे जिन्नों बशर, सारे जिन्नात को या दूसरे आलमों को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई, वापस बीबी आमिना के घर ला करके दे दिया। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उठाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो ना कोई बोझ महसूस होता था, ना कोई वजन महसूस होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने खुद मुझे उठाया हुआ है, इस बच्चे ने उठाया हुआ है। ये सैयदा कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के वो तमाम रिवायात हैं जो विलादत के वक्त हुए थे, मैंने आपके सामने अमानतन नकल किया। इसीलिए हमारा अकीदा है कि वो रसूल आए थे तो आम हालतों में नहीं आए थे, वो कायनात को बदलने के लिए आए थे। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला वो रसूल तशरीफ लाया जो हम गुलामों का गमगुसार है, बेवाओं का सहारा है, यतीमों का मलजा है, बूढ़ों का मावा है। वो रसूल पाक तमाम अखलाक व शियम के साथ तशरीफ लाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उनका बचपना भी निराला, उनकी जवानी भी निराली, उनके अखलाक भी सबसे आला, बल्कि मक्का के दुश्मन भी कहने पर मजबूर कि यही अमीन है और यही सादिक है, आज तक कभी खयानत नहीं की और आज तक कभी झूठ नहीं कहा। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी भी सबसे निराली, उनकी तिजारत भी सबसे निराली, उनकी बातें भी सबसे निराली, बल्कि उनका हर अमल सबसे निराला क्यों ना हो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, तुझे रब ने जमील की, तुझे खालिक, तेरे खालिक ने तुझको जमील किया, तेरे रब ने, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम, मुस्तफ़ा जैसा ना हुआ है ना होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के ये वाक़यात थे। अब हमें आखिर में वही कहना है जो बारगाह मुस्तफ़ा में हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था। अजीज़ा ने गिरामी, तमसील भी दी है मेरे मुस्तफ़ा के एक एक अज़ू को, तो कैसे रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमसील देते हुए वो मकबूल बारगाह सलाम क्यों ना हम पेश कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ का जिसमें हक अदा कर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ का उसमें कमाल रख दिया गया है। वो सलाम मकबूल बारगाह अनाम भी है और मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा करीम भी है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुस्तफ़ा को याद करते हुए एक एक अज़ू पर सलाम भेजा, उनकी आंखों पर सलाम भेजते हुए फरमाया, उठ गई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कदमों के लिए भी सलाम पेश करते हुए कहा बरेली के इमाम ने, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे ये रसूल पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर हम बरकत के लिए यही पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए,
जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिरत में हमारा हाल ये होगा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान इंशाअल्लाह अज़ीज। देखना है क़यामत के दिन भी जो आज चीपी करते हैं, हमारे इमाम ने तो ये कहा है, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत, देखनी है हश्र में इज्जत। हाँ, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। और इज्जत की भी बात आए तो हम यही कहेंगे, हम रसूलुल्लाह के इज्जत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के इज्जत रसूलुल्लाह की। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज मस्जिद तैयबा में बैठकर जिन्होंने खिराज अकीदत पेश किया, मेरा विजदान ये कहता है मौला ताला इसको कबूलियत ऐसी अता करे कि ये तैयबा हकीकी तैयबा का रंग ले आए। मेरे मुस्तफ़ा के तैयबा की बाहर मस्जिद तैयबा में नजर आने लगे, यहाँ सजदे करें और सर उठाएं तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार मैसर हो जाए। हाँ, एक दिन तो वो आएगा जब मस्जिद तैयबा में सर झुकाने वाले हकीकी तैयबा में भी पहुंचेंगे। हुजूर पाक की बारगाह में आज यहाँ मजलिस मुनाकिद करने वाले, इस मस्जिद तैयबा में बैठने वाले दुआ तो जरूर करेंगे, मौला हकीकी तैयबा की जालियों में भी हमें मीलाद पढ़ने का मौका मिले। हाँ, वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, इसलिए कि हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह। मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो दिन आएगा। हम दुआ करते करते दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ करनी है, ये दुआ करें, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार। हमारा अकीदा तो ये हो कि कब्र में भी पहुंचे, मलाइका अगर पूछें, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, कैसे? फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कह दूंगा लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार। इतना बसाओ मेरे नबी पाक को अपनी आंखों में कि देखने वाला भी हुजूर के नूर में मुसर्रतों में डूब जाए, हुजूर से करीब हो जाए। ऐ लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद का यही अजीम तोहफा, आज ये वादा करके उठो कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने कानों की हिफाजत करेंगे। जिन कानों से हमने मीलाद मुस्तफ़ा सुना, इन कानों को गानों का शौक कभी नहीं देंगे। और जो आंखें रसूलुल्लाह को देखने की तमन्ना रखती हैं, वो हसीनाओं को हरगिज नहीं देखेंगी, इसलिए कि हमें मालूम है दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा अगर है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का। रसूलुल्लाह के हुस्न से ज्यादा किसी का हुस्न है? व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। उनके सहाबी हस्सान बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। हकीकत तो यह है आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने, सब सुन्नियों को मालूम है, उनसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। और हस्सान बिन साबित की ये जो नातिया शायरी है, इसकी तर्जुमानी अगर बरेली से सुनना है तो बरेली वाले यूं कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं इनकी बात ना करो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, वहदानियत तौहीद, उनको बरेली के इमाम ने ये समझाया है, बखुदा खुदा का यही है दर,
खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और आप सुनिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जो जोश, जो वलवला, जो जज्बा हमारी महफिल में है, यकीनन इसी महफिल से ये आवाज आ सकती है। बाकी मरे हुए लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, मरे हुए लोगों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है। हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, हम बात करते हैं जिंदा लोगों के बीच में, और हम समझते भी जिंदा उसी को है जो मेरे नबी को जिंदा समझता है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर मचल उठता है। यहाँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं नजर आता जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसकी आंखें खुली ना हो। क्यों मियाँ, किसकी बात हो रही है? यहाँ कोई दुनियादार की नहीं, रसूलुल्लाह की बात हो रही है। और जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल मचलता है तो अब अल्लाह का शुक्र बजा लाना कि मौला अब भी हमारे दिल में इश्क मुस्तफा की शमा जली हुई है। हुजूर की मोहब्बत अगर ना होती तो उनके नाम पर इतना मचलना नहीं होता, इतना उछलना भी नहीं होता, बल्कि उनकी किस्मत में जलना और कुड़ना ही होता है। हुजूर का नाम एक कसौटी है, हुजूर का नाम एक मेयार है। नाप सकते हैं बुखार कितना है और बुखारी कितनी है, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं नाम मुस्तफा से। हमारा तो माहौल ये है कि मोहम्मद कहते ही हमारे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों से लग जाते हैं। कोई कहता नहीं फिर भी चूम लेते हैं। ये इस बात की अलामत है कि चिंगारी अभी रोशन है, उनकी मोहब्बत की चिंगारी अभी रोशन है। और मैं जो बात कहने जा रहा था वो यही है, इसी मजमे से और ऐसे ही मजमे से ये नारा भी लग सकता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे। है सब तैयार हैं जान फिदा करने के लिए? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आप ये हरगिज मत समझना कि तुम्हारे नारों से सिर्फ मस्जिद ही गूंजती है, बल्कि आपको ये पता नहीं होगा तुम्हारे नारों से कितनों की दुनिया उजड़ती है। हाँ, ये भी पता है कितनों की दुनिया उजड़ती है। इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, घर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। हमारे लिए लंबी चौड़ी तेज धारीदार तलवार की भी जरूरत नहीं। मौला ने जुबान में वो बरकत दी है कि ये हजारों तलवारों से भी ज्यादा तेज है। अजीजा ने गिरामी, यही तो हमारे असलाफ का नारा था। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ या रसूल अल्लाह तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। यही जज्बा, यही जवानी और यही वलवला सिर्फ आशिकों के हुजूम में नजर आता है। और यही का ये नारा हो सकता है, किसी मरे हुए मजमे का नहीं। कौन सा नारा? जो बात मैं कह रहा था, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही का है। किसका है?
रसूलुल्लाह का है। इसलिए जवानों अब जिंदगी जीने का मिजाज भी बदल डालो कि हमारे पास जो जान बाकी है ये रसूलुल्लाह से वफा करने के लिए दी गई है। हमारी ये गर्दनें रसूलुल्लाह के नाम पर है, हमारी ये जान, हमारा ये खून रसूलुल्लाह के नाम पर है। जिस दिन भी जरूरत पेश आई हम कोई झिझक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। गर्दन हमारी तलवार के नीचे हो या फांसी के फंदे के नीचे हो, इसलिए कि हमें पता है हम जब जान देते हैं तो किस बात पर। मुर्शिद बरहक ताजुल शरीया बदरुल तरीका ने फरमाया है, आपकी तलअत को देखा तो जान दी, आपकी तलअत को देखा तो जान दी। या रसूल अल्लाह हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देने को तैयार हैं। फांसी चढ़ाना है चढ़ा लो, तलवार चलाना है चला लो, मारना है मार लो, हम तो नबी के नाम पर देने जा रहे हैं। और डर हमें इस बात का नहीं होता कि मर गए, क्योंकि मुर्शिद बरहक ने हमें यह समझाया, आपकी तलअत को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और फिर वहां पर मैं तड़प करके कहूंगा फरिश्ते भी आए मुनकर नकीर, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अब ये अकीदा और ये विजदान और ये यकीन उसके दिल में आता है जिसके दिल में हुजूर की कमाल की मोहब्बत होती है। ये मैं ऐसी लफाजी और फेकम फाक नहीं कर रहा कि कब्र में जाकर हम फरिश्तों से कह देंगे कि अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाकया भी मौजूद है सैयदना उमर फारूक का। हजरत उमर फारूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, कब्र में जाने के बाद दो फरिश्ते आते हैं, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और सख्त तरीन सवाल करते हैं, उमर तुम क्या करोगे। हजरत उमर ने हुजूर से एक बात पूछी, या रसूल अल्लाह मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो जो आज मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्या ये मोहब्बत बाकी रहेगी। हुजूर से उन्होंने पूछा, हुजूर ने फरमाया, हाँ उमर, मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। इतना जवाब सुनने के बाद हजरत उमर ने क्या कहा, हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह फरिश्तों का मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं निपट लूंगा। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं, मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन कर दिया गया, कई दिनों के बाद मैंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा। बेटे कहते हैं, मुझे वो वाकया याद था मजलिस रसूल का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर ने कहा था मैं देख लूंगा। मैंने पूछा, बाबा जान क्या वो कब्र में फरिश्ते आए थे, वो काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, सख्त तरीन सवालात करने वाले। हजरत उमर ने कहा, हाँ आए थे। कहा आपने क्या मामला किया। हजरत उमर क्या जवाब देते हैं, सुनिए, ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं उन्होंने मुझे उठा करके पूछा, तेरा रब कौन है। तो हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे और कहा कि ये कौन है जो हमसे सवाल करता है, पहली कब्र ऐसी है जहां हमसे सवाल हो रहा है। दूसरे फरिश्ते ने एक से कहा, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह, छोड़ दो ये साहिबे रसूलुल्लाह है, हम दूसरी ड्यूटी पर चलते हैं। इसी को तो हम कहते हैं, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचाऊं यहाँ। अब आपको एक बात ये भी मैं बताऊं, हम सुन्नी जो बार बार नबी का तस्करा करते हैं, बाद लोगों को ये लगता है ये सिर्फ नबी नबी करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद हमें सिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो, अगर नबी के पीछे चलोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दो आलम की, ये आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।